اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ آج کا دن بہت منحوس تھا۔ یہی کوئی صبح کے 8 بجے کاکا سیڑھیوں سے گر کر ناک زخمی کر بیٹھا۔ حالانکہ بطولہ بی بی نے کہا بھی تھا کہ چارپائی پر بستر رکھ کر سیڑھیوں نہ اتر، گر گیا تو ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ شکر ہے کہ پیش گوئی حرف بحرف پوری نہیں ہوئی، بات ناک زخمی ہونے پر ہی ٹل گئی۔ ویسے خربوزے جیسے گول چہرے پر گیند نما سوجی ہوئی سرخ ناک خوب بھپ رہی تھی۔ سریا اور نازی نے تو خوب کہکے لگاتے، جس پر بطولہ بی بی نے آگ بگولا ہو کر لانتے بھی خوبی ڈالی اور اطلاع دی کہ دنیا میں ایسی سنگ دل بہنیں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ اچھا تو صبح 8 بجے کا واقعہ تھا۔ دوپہر 12 بجے جب بہو بیگم نور جہاں صاحبہ، جنہیں بطولہ بی بی نے فضول جہاں کا خطاب عطا کر رکھا تھا، اچانک کرنٹ کھا کر نیچے بے ہوش ہو گئی۔ آئے ہائے، آج تو میں نے اسے ساگ پکانے کو کہا تھا، آدھا تو یہ کاٹ بھی چکی تھی، اب کون پکائے گا؟ منحوس ماری مرن جوگی، یہ تو آج سارا دن بستر سنبھالے گی۔ ننھی سی جان کیسے کیسے روگ، ساگ کا سودا بھی نصیب میں نہیں۔ دن کے 1 بجے جب سریا ماں سے پوچھ رہی تھی، اماں اگر بھابھی آج کرنٹ لگنے سے مر جاتی تو پھر ہم رشید بھائی کی دوسری شادی چاچے اصغر کی شموں سے کرتے یا خالہ اصغری کی صفو ٹھیک رہتی؟ اماں کے جواب سے پہلے دروازے کی گھنٹی بج اٹھی اور پوسٹ مین ایک لفافہ دے کر رخصت ہوا۔ لفافہ کھولتے ہی کارڈ پر نظر پڑی۔ عبارت سریا نے پڑھ کر سنا دی۔ یہ شادی خانہ آبادی کا کارڈ تھا، شادی بھی اس کی پھپھو انوری کی بیٹی تارو کی۔ آئے ہائے، آج کا دن ہی منحوس ہے۔ تب ہی تو بطولہ بی بی نے دانت پیس کر تاریخی جملہ بولا، دفعہ دور، ہم نے نہیں جانا تارو کی شادی پر۔ نازی نے بھی ناک چڑھا کر کہا۔ کاکا بھی اپنی سوجی ناک پر اپنی بیوی نور جہاں کا دوپٹہ رکھے باہر آ گیا۔ تارو کی شادی ہے؟ ہاں ہے نا، تیرے کیوں آنسو نکل آئے ہیں؟ اماں گرجی۔ تکلیف ہے اماں؟ بیوی تیری زندہ سلامت ہے، باپ تو بننے جا رہا ہے، ابھی بھی تارو کی شادی سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ اوہو اماں، ناک میں تکلیف ہے۔ چل جا، ماں کو بناتا ہے، رگ رگ سے واقف ہے، پتہ ہے مجھے تارو کے لیے تیرے دل میں کیا جذبات ہے۔ کاکے نے جھلا کر پیر پٹخا، تم میرا بسا بسایا گھر خراب کرو گی۔ اماں، نور جہاں کو بھنک بھی پڑ گئی تو ساری عمر تانے دیتی رہے گی۔ مرد بن جورو کے غلام، بیوی سے ڈرتا ہے؟ خبردار میرے سامنے ایسی بزدلی کی باتیں نہ کیا کر۔ آج ناک ٹوٹی ہے اور کل کان توڑ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ ٹھیک ہے اماں، لولا لنگڑا کر کے گلی کی نکڑ پر بٹھا دینا بھیک مانگنے کے لیے۔ چل تو اپنی پلاننگ شروع کر دے۔ اچھا ڈیٹ تو بتا دے، کب ہو رہی ہے اس کم بخت ماری کی شادی؟ اماں دفع کرو، نہ جاؤ۔ گلا کرے تو کہہ دینا کارڈ نہیں ملا۔ کیسے نہ جاؤں؟ معاملہ خاندان برادری کا ہے، ہر کوئی تھو تھو کرے گا۔ اور پھر کاکے کے بیاہ پر وہ چلاکو تمہاری پھپھو کی بہو کے 4 کام والے جوڑے اور ایک سونے کی انگوٹھی چڑھا گئی تھی، اب ہمیں بدلے میں کچھ بڑھ کر دینا پڑے گا۔ کدھر ہے وہ فضول جہاں کاکے؟ اماں اب تو گھر بار والا ہو گیا ہے، کاکا نہ کہا کرو، سچی بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ رشید میرا نام ہے، یہی بولا کرو۔ چل جا، ماں کے ساتھ بکواس نہ کیا کر، یہ لاڈ ہے میرا، خبردار جو اب منہ بنایا۔ قدر کر بے وقوف، ایسی محبتیں سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ پر اماں بس چپ، گرج کر مزید کہنے سے روک دیا۔ مہارانی کدھر گئی ہیں اب؟ بطولہ بی بی کو بہو کی خبر لینی تھی۔ جانا کدھر ہے؟ اسی جہنم میں سڑ رہی ہوں۔ اچھا ہے اگلی زندگی کے لیے تھوڑی تیاری ہو جاتی تیری۔ بطولہ بی بی کو اس جواب نے بدمزہ نہیں کیا۔ کیا ہے، کیوں بلا رہی ہو؟ آ ادھر بیٹھ، کچھ مشورہ کرنا ہے تجھ سے۔ مشورہ اور مجھ سے؟ اللہ خیر کرے۔ وہ بڑبڑا کر بیٹھ تو گئی لیکن کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تیری پھوپھی ساس انوری کی بیٹی ستارہ کی شادی بربادی ہو رہی ہے، بلایا ہے ہم سب کو۔ انوری اپنی باری دے چکی ہے، تیری شادی پر وہ جو کام والے 4 جوڑے تھے نا، وہ اسی کی طرف سے تھے، اور وہ انگوٹھی جس پر نیلا رنگ لگا ہوا تھا وہ بھی اس نے دی تھی۔ اچھا تو میں اب کیا کروں؟ ایسا کر، بدلے میں تجھے بھی تو اب یہ سب بلکہ اس سے بڑھ کر دینا پڑے گا۔ نہیں، میں کوئی کمائیاں کرنے نکلتی ہوں؟ کہو اپنے بیٹے سے لا کر رکھے پیسے تمہارے ہاتھ پر۔ میں جو کماتا ہوں اماں تمہارے ہی ہاتھ پر رکھتا ہوں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے میرا گھر والا، ہم میاں بیوی تو اپنا کما کر بھی فقیر کے فقیر ہی رہتے ہیں، یہ سب کچھ تمہیں لا کر پکڑاتا ہے۔ بطولہ بی بی نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اچھا بھلا خرچہ آ گیا تھا سر پر۔ بطولہ بی بی کو جب کچھ نہ سوجا تو سر پر کالا دوپٹہ باندھ کر لیٹ گئی۔ ہائے اماں، اتنے شوق سے ساگ پکوایا تھا، تھوڑی سی روٹی تو کھا لے۔ 1.5 گھنٹے بعد سریا نے آ کر کندھا ہلایا۔ کس کا کیسا ساگ؟ سوچوں نے مار دیا ہے مجھے۔ اماں اٹھ تو۔ اکلوتی بہو نور جہاں بھی چلی آئی اور آ کر بستر پر ان کے قریب ٹک گئی۔ برادری میں بڑی تھوتو ہوگی نوری میری تو، آواز بھرا گئی۔ نہیں ایسے ہی تھوتو ہوگی، میں سوچ رہی ہوں پچھلے سال میری خالہ دبئی سے میرے لیے جوڑے لے کر آئی تھی، ویسے کے ویسے ہی رکھے ہیں۔ اور رہی بات انگوٹھی کی، وہی پھوپھی کی دی ہوئی انگوٹھی میں کچھ پیسے ملا کر ٹاپس بنوا لیتے ہیں، نگ موتی زیادہ لگوائیں گے تو خوب بھاری بھاری لگیں گے۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں شاد آباد رکھے۔
बतूला बी ने बढ़कर पेशानी चूम ली। अम्मा नए कपड़े तो हमारे भी होने चाहिए, लड़कियों ने याद दिलाया। और कोई और मौका होता तो बतूला इस याद आवरी का शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से अदा करती, लेकिन अब तो सर से बोझ उतरा था तो तवज्जो नहीं दी। आने वाले दिन हंगामा खेज रहे और जिस वक्त उनकी मुसाफिरों से खच्चा खच भरी बस मंडी मुरेद के लिए रवाना हुई, जाड़ों की धूप हर सू फैली हुई थी। बतूला बीबी आज से 6 साल पहले बनाया गया वेलवेट का जोड़ा पहने काफी बाएतमाद और बावकार दिखाई दे रही थी। पर्स भी कंधे पर डाल रखा था और बहुत तेज अनाबी रंग की लिपस्टिक भी लगा रखी थी। अनवरी के घर बिछ जाने की जरूरत नहीं है, ये वो हदायत थी जो इतने दिनों में बार बार दी थी। अम्मा मूंगफलियाँ ही खरीद लो। नाजी ने ललचाई नजरों से मूंगफलियों के पैकेटों को देखा। दफा दूर, पहले ही धुएं ने कलेजा साड़ा हुआ है। अच्छा फिर मसाले वाली मूलियाँ ही ले दो, कमबख्तों, डिकार मारकर सबका सफर गारत करोगी। अम्मा कंजूसी की हद होती है, लड़कियां खफा होकर बोली। बतूला बीबी ने ठंडी सांस भरी। क्या बताती महंगाई के इस दौर में कैसे दांतों से पकड़कर खर्च कर रही हैं। बच्चे छोटे थे जब बेवा हुई थी। कुछ लोगों के कपड़ों की सिलाइयाँ की, बाजार में अचार चटनियाँ बनाकर बेची। पर सच्ची बात है जैसे अब आके कमर टूटी थी, इतनी तंगी पहले नहीं थी। अब रशीद उर्फ काका कमाता था, वो खुद अब तक अचार चटनियाँ बनाकर फरोख्त करती थी। बहू बेटियां भी थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम कर लिया करती थी, मगर महीना पूरा नहीं होता था। बिजली गैस पानी के बिल भरते वो खाली हो जाते और पेट का दोजख भरना अजाब हो रहा था। ऊपर से ये ब्याह शादी के खर्चे। मेरी भी 2 बैठी हैं, कहाँ धक्का दूं इन्हें। सारे गरीब तबके के हालात एक जैसे हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नहीं सोचते। कितनी खुदगर्जी से सिर्फ यही सोचते हैं कि अपना घर भरता जाए, वरना अगर बेटियां 2 कपड़ों में ही रुखसत करा ली जाएं तो। अम्मा क्या सोच रही हो, कितनी आवाजें दी हैं, सुनती ही नहीं हो। नाजी ने कंधा हिलाया। बतूला को तो महंगाई के जिन ने ही मार डाला, वरना ये बतूला तो मरने वाली नहीं थी। छोड़ो अम्मा, दफा कर महंगाई को और महंगाई करने वालों को। वो देख नई नवेली दुल्हन कैसा प्यारा सूट पहनकर बैठी है, नाजी ने सरगोशी में बताया और साइड वाली सीटों की जानिब इशारा किया। दफा दूर, प्यारा सूट नासपीटी से इतना नहीं हुआ, ऊपर चादर ही डाल ले। देख तो सारे मर्द कैसे दीदे फाड़ कर देख रहे हैं और उसका मर्द बेहया बेगैरत। चुप कर अम्मा, नाजी तो कहकर पछताई। बीबी जी आप पिछली सीटों पर चले जाएं, कंडक्टर ने आकर हुक्म दिया। मैं क्यों जाऊं, उधर किसी को बिठाना है। ओह माई, आहिस्ता, वो अपने थानेदार साहब आ रहे हैं। खैर तो है, मैंने ठीक ही बोला है। और तू कह दे अपने थानेदार से मैं कोई मुफ्त में यहाँ नहीं बैठी, टिकट खरीदे हैं। क्यों तमाशा करती हैं, हम सारों को बस से उतरवा देंगी। चल अम्मा पीछे चलते हैं, रशीद जल्दी से बोला और बतूला भी उठ खड़ी हुई, मलूल और उदास। पैसे दिए थे लेकिन जोर आवर का जोर चल गया। वो आखिरी सीट पर आ गए जहाँ हिचकोले बहुत ज्यादा लगते थे। चंद साल पहले इतना अंधेरा नहीं था, लोग मजलूम की हमायत में बोलते थे, मगर अब तो किसी को किसी से कोई सरोकार ही नहीं है, कोई इसके हक में नहीं बोलता। सब थानेदार से डर गए थे। अम्मा फूफी का घर डबल स्टोरी है ना, बहुत से कमरों वाला। हाँ पिछले साल आई थी तो बता रही थी। भाई हमें क्या, तुम चाहे 4 स्टोरियां बना लो, हम अपने 2 कमरों में ही खुश हैं। नहीं अम्मा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, चलो एक कमरा तो मिल ही जाएगा ना। सच्ची इन हिचकोलों ने कमर की हड्डियाँ चटखा दी हैं और हमारी सड़कें किधर कच्चे पक्के रास्ते हैं जिन पर बस चलती काम उछलती ज्यादा है। ये कम वक्त थानेदार, उसकी तो पेटी ही उतर जाए। अच्छे भले अगली सीटों पर बैठे थे। बतूला बेगम को नए सिरे से ताव आया। ए बहन किधर जा रही हो। अगली सीट पर बैठी औरत ने अपनी बोरियत मिटाने को गुफ्तगू का आगाज किया। घर ही जा रही हूँ ना, तुझे कल्बों में जाने वाली लगती हूँ। ओहो दफा हो, लगता है किसने धक्के देकर घर से निकाला है। खातून ने वार करने के बाद रुख मोड़ लिया। बतूला को धक्के देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों शोर कर रहे हो, चुप करके बैठ जाओ। उनकी सीटों पर कब्जा करके बैठे थानेदार गरजे। मुसाफिरों 10-10 रुपए सदके के निकालो और इस पुलिस वाले को दो, लगता है जेब खाली है इसलिए इतना तप रहा है। बतूला बीबी का तीखा वार, वो तो तड़प गए और लगे ललकारने। काका रशीद का तो रंग उड़ गया। दोनों लड़कियां भी सहमी जा रही थी। कौन मर्द है इस बदतमीज औरत के साथ, जरा तबीयत तो साफ करूं उसकी। पहले अपने मुंह पर लगी चिकनाई तो साफ करो, मक्खी बार बार फिसल रही है। उसके बाद औरत की सच्ची बात पर गुस्सा कर लेना। ये 2 स्टूडेंट्स थे गरम, जोशीले खून वाले। उनका बोलना था कि बाकी सब भी भिनभिनाने लगे। थानेदार को वक्त का तकाजा समझ में आ गया, इसलिए चुप साध ली।
मंडी मुरीद अब भी कितना गंदा है। सुरैया ने अड्डे से बाहर आकर चिंची में बैठते ही बेजारी से कहा, तेरा शहर तो बड़ा लश लश करता है। ए जी, मैंने कहा गंडेरिया ही ले लो। नूरजहां ने सरताज से फरमाइश की। क्यों मुरीद के इन गंडेरियों में से क्या कीनू का रस निकलता है? खबरदार जो किसी ने पैसों वाली बात की हो तो। इतना किराया लग गया, अभी वापिस भी जाना है। बेफजूल बेफायदा। बतूला बीबी ने जोर से सर झटका। तौबा खुदा, ये रिश्तेदारियां भी क्या चीज बनाई है तूने। बना ही दी थी तो मुझे कम से कम अमेरिका में पैदा कर देता। रिक्शे वाली ने पीछे मुड़कर बतूला बी को देखा, कहका मारकर हंसा, फिर बाकी सफर भी हंसता ही रहा। हस्बे रवायत घर में खूब रौनक थी, खसूसन बाथरूम के बाहर तो एक हजूम सा था और खूब बोल भी रहे थे। ये तो गौर करने पर पता चला था जो बाथरूम में जाकर बैठ गया था, हजूम बस उसी के खिलाफ था। फूफी अनवरी इन सब से खुले दिल से मिली और ये तारा को देखकर बतूला बीबी ठटकी। क्या मीसनी सी दूर फिटे मुंह सूरत हुआ करती थी, अब क्या निखार आया था। पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल करती रही है। आ गए आप लोग, भाई अकलौती मामी हो बेटी की, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। बिरादरी इकट्ठी थी, दिलचस्प मशगला यानी एतराज खेला जाते। हाँ, तेरी माँ की तरह जो शादी का सुनते ही खानदान समेत महीना पहले डेरे डालकर खर्चा बचाती है। बतूला क्यों चुक जाती। भाभी अभी तो सफर से आई हो, खैर से लड़ने को बहुत दिन है, अभी आराम कर लो। छोटी नंद असगरी हमदर्दी भी की तो किस अंदाज से, कैसे लपेट कर मारती है मीसनियाँ। फूफी तुम्हारी रज्जो का क्या बना? ससुराल वालों से सुलह हुई या तुम्हारी ही तरफ बैठी है सीने पर मूंग दलने को? नूरजहां को ससुराली मसले मसाइल में बहुत दिलचस्पी रहती थी। वैसे तो बतूला बीबी को उसकी आदत एक आंख ना भाती थी, लेकिन इस वक्त जी चाहा भटकर बहू का मुंह चूम ले। लड़कियों, अपना सामान स्टोर में रख दो, इधर बावर्ची खाने के साथ स्टोर है, ताला शाला लगा देना। ऐसे ही कोई कीमती चीज गुम हो गई तो इल्जाम अपनी अनवरी फुप्पी को मत देना। नाजी बैठी रही, सुरैया सामान को ठिकाने पर रखने को उठ खड़ी हुई। कितना अच्छा घर बना लिया है फुप्पी ने, स्ताइशी अंदाज में देखती आगे बढ़ रही थी। लाइन जी, मैं रख देता हूँ। सामने अनवरी फुप्पी का बेटा अरशद आ गया था। हाँ अरशद भाई जी, इतने बड़े हो गए हो और तुमने खुद को आईने में देखा है कभी? सादा से मासूम अंदाज के जवाब में कैसा जताया हुआ अंदाज। वो तो शर्मा कर सिमट सी गई। क्या कर रही हो आजकल? मैं छत पर चढ़कर गुड्डियाँ उड़ाती हूँ, गली में किट किट खेलती हूँ। भाई बताओ, भला ये कोई सवाल है? लड़कियों ने हांडी रोटी के अलावा क्या करना है? ओहो शुक्र है। पूरा जवाब सुनने के बाद तसल्ली हुई तो हंस पड़ा। शाबाश। सामान रास्ते में रखकर कौन सी बातें शुरू हो गई। फूफी अनवरी कमरे से निकली थी। अम्मा, मैं उससे पूछ रहा था तुम वाकई सुरैया हो? कितनी छोटी सी थी जब देखा था। हाँ बेटा, वक्त भी तो बड़ा गुजर गया। फूफी पता नहीं क्यों रंजिदा हो गई। सुरैया बैग उठाकर आगे बढ़ गई। सुरैया, ये अपनी तारा तो बड़ी खूबसूरत हो गई है। स्टोर से वापसी पर भाई रशीद उर्फ काका टकरा गए और चुपके से बोले। सुरैया ने आंखें निकाली। ओहो खुदा को मान, क्यों मेरा बसा बसाया घर बर्बाद करवाने लगी हो? भाई नूरजहां मेरी बीवी है, मैं तो किसी और के बारे में ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकता। ओहो क्या बातें हो रही हैं। भाई बहन में जरूर अपनी फुप्पो के बारे में ही बातें कर रहे होंगे। हाँ भाई, बड़ा पैसा आ गया है, बड़ी मगरूर हो गई है वो। हम तो इस शादी पर आकर पछता रहे हैं। पता नहीं ये मोहतरमा रिश्ते में उनकी क्या लगती थी, कहकर आगे बढ़ गई। अम्मा, सितारा के ससुराल से फोन आया है। कोई लड़की चिल्लाकर ऐलान कर रही थी। अनवरी बेगम लपक छपक कर एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो गई। पीछे तजस्सुस की मारी खवातीन भी। कुछ देर बाद गर्मा गर्म खबर के साथ वापस आई। लो जी, तारा के ससुराल से नई फरमाइश आई है। बताने वाले का चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था। कह रहे थे दुल्हे की माँ को हल्की सी चूड़ियाँ डालकर तरखा न देना। तोहफे ऐसे आने चाहिए कि हमारे शरीके वाले जल भुन जाएं। कितने बेहया लोग हैं, एक बुजुर्ग खातून ने कहा। बतूला बीबी अब अनवरी के धुआंधार होते चेहरे को देख रही थी। अनवरी थक कर एक तरफ ढह गई थी। इनके दोनों बेटियों की भी ऐसी ही हालत थी। अनवरी और बतूला की कभी नहीं बनी थी। वजह वही फसाद की जड़ नंद भाभी का रिश्ता और मजीद वजह अनवरी के बदमिजाज मियाँ की थी। बचपन में तारा और रशीद उर्फ काके का रिश्ता अनवरी और उसके मरहूम भाई यानी रशीद के बाप ने मुंह जबानी तय किया था, लेकिन रशीद के बाप की वफात के बाद तारा के बाप ने ये रिश्ता खत्म कर दिया, ये कहकर के लड़का तो यतीम है, मेहनत मजदूरियाँ करके माँ बहनों को पालेगा, मेरी बेटी को अच्छे घरानों की कमी नहीं। रशीद को तो 2 साल पहले ही बतूला ने नूरजहां से ब्याह दिया था। तारा की किस्मत अब आकर खुली थी और पता नहीं कैसे लोगों से नसीब जुड़ गया था।
इसका। बतूला सारी दावतें भुलाकर नंद के पास जा बैठी। घबराना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आखिर हम सब करीबी रिश्तेदार हैं, तारा सबकी बेटी है। ये सुनना था कि करीबी रिश्तेदारों की भीड़ झपटने लगी। अनवरी रोने लगी। जब से रिश्ता पक्का हुआ है इन लोगों की फरमाइशें जारी हैं। अब तो कख से भी हल्की हो गई हूँ, कहाँ से भारी जेवर चढ़ाऊं लड़के की डाइन माँ की कब्र पर। अल्लाह करे पुत्र के ब्याह से पहले ही मौत आ जाए उसे। दिल जले ऐसी ही बातें कर सकते हैं। शाम को तारा की बरी लेकर आ रहे हैं, तब भी पूरा बारात वाला खाना पक रहा है। शगुन की ढेरों मिठाई अलग साथ जाएगी, मेहंदी पर भी आएंगे, शादी पर तो खर्चा होना ही है। अब ये सब खर्चा कहाँ से करें हम? बतूला भाभी सच कहती हूँ, अब तो घर का सामान बेचने की नौबत आ गई है। मैंने तो सुना है तेरे लड़के बहुत कमाते हैं। हाजरीन में एक संगदिल खातून हर जगह होती है जो किसी के आंसुओं की परवाह न करते हुए सवाल डाल देती है। आपा, मेरे बेटे दयानतदारी से कमाते हैं, कोई डाके नहीं मारते। और सुन बतूला भाभी, तू कहती थी तारा सबकी बेटी है, यहाँ तो मेरे अपने मेरा दर्द नहीं समझ रहे। शादी के इस घर में फरमाइश के बाद रौनक मान पड़ गई थी कि अहले खाना परेशान थे। अनवरी के दोनों लड़के और मियां मजीद रकम का बंदोबस्त करने निकल गए थे। हल्की भरी क्या, उन्होंने तो दूल्हे की माँ के लिए चूड़ियां बनवाई ही नहीं थी, सिर्फ जोड़ा ही रखा था, मगर अपने मुंह से अब वो मांग रहे थे। पूरी नहीं करेंगे तो बेटी को जवाब देना पड़ेगा। इस बात ने बाप और भाई को हर तरफ हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। रिश्तेदार कुछ उदास शक्लें बनाकर बैठने के बाद अपनी खुशगवार बातों में लग गए। लड़कियां तो ढोलक भी बजाने लगी। शाम को बारात की सूरत लटके वाले आए। 5 नंदे तेवरी चढ़ाए हुए। सास के तो खैर मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। बरी की नुमाइश हुई, ठीक थी, कुछ जोड़े तो काफी अच्छे थे। खाने का दौर शुरू होने से पहले सास ने अपने कड़े देखने की फरमाइश कर दी। अभी बनकर नहीं आए। अनवरी ने फिदवियाना अंदाज में कहा, और मेरी लड़कियों के लिए क्या बनवा रही हो? एक एक अंगूठी तो होनी चाहिए। जैसे जैसे गुर्बत बढ़ रही है वैसे वैसे लालच बढ़ रहा है। हम एक दूसरे को नोच खाने को तैयार हैं। हम सा बेहिस कोई होगा? फूफा के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। बहन जी, अपनी लाडली बेटी, अपने घर की रौनक आपके हवाले कर रही हैं। ये क्या काफी नहीं है? ए ना भाई, मुझे तो लग रहा है कोई लाडली बेटी नहीं, कोई बोझ सर से उतार रहे हो। 100 अरमान होते हैं माँ बहनों के लिए, लेकिन इधर कोई बात हम मुँह से निकालते हैं, उधर तुम सबके मुँह लटक जाते हैं। हालांकि इन बातों का ख्याल तो आप लोगों को खुद करना चाहिए। चाचा जी, बड़ी बेटी ने भी माँ की बात में हिस्सा डाला। सफेद पोश हैं हम भी, कहाँ से पूरी करें ऐसी बेतुकी फरमाइशें? बेतुकी यानी आपका मतलब है कि लड़के वालों की तरफ से आई तमाम खवातीन बोलने लगी तो इधर बिरादरी वाली कोई खामोश रहती। अनवरी और उसके बेटे अपनी तरफ के मेहमानों को खामोश करवाने के लिए हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार न था। बात बढ़ती चली गई। लड़के की तरफ के मर्द भी शामियाने में आकर शामिल हुए। बस जी, ये तय हो गया, रखो अपनी लड़की अपने पास, हम नहीं आ रहे कल बारात लेकर। लड़के के बाप ने बाएं हाथ से दाएं हाथ का मुका रसीद करके फैसला कुन अंदाज में कहा, भाई साहब मेरी बात सुने। अनवरी और उसका शोहर सदमे से चूर उनके पांव तक पकड़ने को तैयार थे, लेकिन दोनों लड़के जवान गरम खून वाले थे, ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके। माँ बाप को पीछे करते हुए बोले, जाओ निकल जाओ हमारे घर से, ऐसे बेगैरतों में बहन देने से बेहतर है हम सारी उम्र इसको घर बिठा रखें। आए हुए लोग बरी के साथ वापस चले गए और पीछे मौत वाली घर का सोग और सिसकियां रह गई। अनवरी फूफी तो बेहोश होकर गिर गई और फूफा जी सर हाथों में गिराते मलूल बैठे थे। जरा सी देर में क्या से क्या हो गया, लालच ने सारी खुशियाँ चुरा ली। तारा के अब्बा लाखों रुपया लग गया, कर्ज अलग चढ़ गया, पर बेटी को खुशियाँ फिर भी ना दे सके। हाय अब क्या बनेगा मेरी तारा का? तारा खूबसूरत भी नहीं है, बस आम सी लड़की है, अब ये दाग भी लग गया। दूसरी बार बारात आनी तो बहुत मुश्किल है। ये वो लोग थे जिनकी इस घर से कोई न कोई रिश्तेदारी निकलती थी। गरूर की सजा है जी, बस अल्लाह बचाए इस गरूर से। बंदे के पास पैसा बाद में आता है और गर्दन में सरिया पहले आ जाता है। मैंने तो आज तक कभी गरूर नहीं किया। ये खाला शरीफा थी जिनकी आज तक किसी से नहीं बनी थी, मगर इस मौके पर सबने इस बात में सर हिलाना जरूरी समझा। मेरा ख्याल है सवेरे वापस चलना चाहिए, अब यहाँ रहकर क्या करना। मैं भी यही सोच रही हूँ, उठकर सामान बांधती हूँ। आय हाय कितना खर्चा कर आए थे हम शादी के लिए, मेरी बेटी ने तो हजारों की तैयारी कर डाली थी, सब बर्बाद गया। अम्मा बड़ा ही बुरा हुआ। फूफी अनवरी के साथ अंदर कमरे में बतूला, रशीद और नूर जहाँ बैठे थे। बस बहू, इसीलिए तो लोग बेटी की पैदाइश पर रोते हैं। हम बेदीद लोग इस नेमत की कदर जो नहीं कर सकते। बतूला ने
आह भरी। अम्मा मैं सोच रही थी मेरी जन्नती खाला का बेटा है ना सदीक, क्यों ना इसको फोन करूं, सारी बात बताकर तारा से शादी का कहूं। दुनिया में एक मैं ही तो हूँ उसकी बहन, कभी नहीं टालेगा। ना ना चुप कर, इसके लिए तो मैं अपनी सुरैया का सोचती हूँ। पर अम्मा हमारी सुरैया में कौन सी कमी है? तारा पर तो दरवाजे से बारात वापस जाने का दाग लग चुका है। रशीद ने भी समझाया, चुप करो जमाने के हमदर्दो, सर न खाओ मेरा। पहले ही जो बदमज़गी हो गई है, सर में दर्द हो रहा है। चाय बना दूं अम्मा? लो पूछो भला ये कौन सा मौका है चाय पीने का? मैं अनवरी को देखूं, जब मेरा ये हाल हो रहा है तो उसका क्या हाल हुआ होगा? वो तो माँ है। अनवरी का हाल वाकई बहुत बुरा था। उसके पास तारा की मुजरिम की तरह सर झुकाते बैठी थी। वो माँ बाप भाइयों सबसे शर्मिंदा थी। तारा तो क्यों मुंह लटकाए बैठी है? दुनिया इन लालची लोगों पर खत्म थोड़ी हो जाती है। उठ शाबाश, उतार दे ये पीला जोड़ा, चल किसी अच्छे रंग का जोड़ा पहन। उठ शाबाश। बतूला ने जाकर चमकारा, देख लेना तुझे इससे कहीं अच्छा साथ मिलेगा। किसी ने तसल्ली दी, बाकियों के चेहरे मजीद दुखी तफसीर बन गए। हाँ ये बस तसल्लियाँ ही तो हैं। मेहमानों की अक्सरियत सामान समेटने लगी थी। खाना तो तैयार पड़ा था, अब मेजबान तो किसी काबिल थे नहीं। सबने खुद ही सर्व किया, खुद ही खाया। अक्सर को तो इतनी बोरियत महसूस हुई कि वो रात को ही बस और कोच के अड्डों पर पहुंच गए। कल तक घर में कितनी रौनक थी, आज खामोशी छा गई। बतूला बीबी को नींद नहीं आ रही थी। तारा की शादी का सुनकर जलन तो मुझे भी हुई थी, पर खुदा ये भी तो जानता है दिल से मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। किसी की शादी की खबर के साथ ही पहली परेशानी तो मुझे खर्चे की लग जाती है, बस इसीलिए ऐसा बोल गई थी। करवट बदली, नींद फिर भी नहीं आई। वो उठ बैठी, कुछ प्यास महसूस हो रही थी। पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। अनवरी के कमरे से उभरती सिसकियों ने कदम रोक लिए। अनवरी और तारा रो रही थी। बतूला पानी पिए बगैर ही पलट आई। नूरजहां आकर सोई हुई बहू को झंझोड़ा। फोन कर अपने भाई सदीक को, उसे बता तूने उसका रिश्ता अपनी फूफी सास की बेटी तारा से तय कर दिया है। पर अम्मा तुम तो कहती थी सुरैया के लिए। नहीं, अगर हम सब खुद गर्ज हो गए, अपनी अपनी में पड़ गए, तो सच कहती हूँ कुछ नहीं बचेगा। कोई तो हो जो अपने से हटकर दूसरों का सोचे। मेरी सुरैया अभी कम उम्र है, उसके माथे पर रब ने कोई खामखा दाग नहीं सजाया। बस तू तारा की फिक्र कर, सदीक तो मान जाएगा। उसकी तरफ से मैं हाँ करती हूँ, तुम बस फूफी से बात कर लो। और बतूला बीबी वापस पलटी, जाकर अनवरी के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अंदर दाखिल हुई। तारा बस कर, मैंने तुझे पहले भी समझाया था। और भाई तुम सारे घर वाले इधर बैठे हो सबके सामने। फिर कुछ ख्याल आया तो नूरजहां को आवाजें देने लगी। नूरजहां भी उल्टे सीधे दुपट्टे और मुंदी मुंदी आंखों के साथ फौरन चली आई। लो खुद बात कर लो, लड़की की बहन तू ही है ना। और जो बात नूरजहां ने की, इससे वहाँ शादी और मर्द की कैफियत हो गई। कुछ देर तक तो कोई कुछ बोल ही ना सका। फिर अनवरी लपक कर पहले बतूला फिर नूरजहां के गले लग गई। जरा सी देर में मंजर ही बदल गया। घर पर लगी आराइशी बत्तियां जो शाम को बंद कर दी थी, फिर से जला दी गई। सोती हुई लड़कियों को जगाया गया और जोर शोर से गाना गाने लगी। और इधर सदीक साहब हर बात से बेखबर अपने बिस्तर में घुसे खराटे ले रहे थे। अपनी बेटी का नसीब मैंने तारा को सौंप दिया। अल्लाह अब इस बात को मेरे लिए पछतावा ना बनाना, मेरी बच्ची का नसीब तू ही खोलना। बतूला बीबी सोच की गिरदार में डूब उभर रही थी। सुबह सवेरे नूरजहां ने सदीक को इतला भी दे दी। खैर मुबारक आपा, तुझे भी मुबारक हो, पर इतनी जल्दी में कैसे इंतजाम करूंगा? महीने 2 महीने की मोहलत तो दो। वो 4 दिन बाद शादी का सुनकर बौखला गया। शाबाश, सारी बात समझा दी, फिर भी वही बकवास। लगता है तू अभी भी नींद में है। आखिरी बार बता रही हूँ, कार्ड बढ़ चुके हैं, अब तारीख नहीं बदली जा सकती। मुझे पता है तू इंतजाम कर लेगा। अब झूठ मूठ के नखरे बंद कर, ये ले अपनी सास से बात कर। नूरजहां ने अनवरी को फोन थमा दिया। सदीक से बात करके अनवरी ने नूरजहां को गले लगाकर ढेरों दुआएं दे डाली। अम्मा मेरा ख्याल है अब हम वापस चलते हैं। सदीक की तरफ से बरी बनानी है और बारात भी तो हमने ही लानी है ना। नूरजहां की बात पर लड़कियां और बतूला हंसने लगी और असबात में सर हिलाने लगी कि बारात के साथ बाराती बनकर आना भी फख्र की बात होती है। ठीक है तुम सब जाओ, मगर सुरैया मेरी तरफ से शामिल होगी, मेरी होने वाली बहू की हैसियत से। अनवरी ने ये क्या बात कह दी? बतूला तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। खानदान का सबसे पढ़ा लिखा और कमाऊ लड़का, जिस पर फूफा को बहुत फख्र था। बतूला का यही ख्याल था कि अपनी किसी भांजी भतीजी को ही बहू बनाकर लाएंगे। अनवरी की यतीम भतीजी को कहाँ देखेंगे? मगर रब को बतूला की कुर्बानी पसंद आ गई। उसने इतना अच्छा दामाद इसको अता कर दिया। अब आंखें भिगोने की बारी बतूला की थी। खुदा की रहमत से हम क्यों मायूस हो जाते हैं? वो तो बेहिसाब अता करता है, हमारी जरा सी नेकी पर माला माल कर देता है। तो फिर अब अगर रब इस कौम से नाराज है तो कहीं हम अपने आमाल की सजा तो नहीं पा रहे?